हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आत्माराम प्रभु, कमल विमल जी, धनंजय कुंदन, कृष्णा अभिनव, पीयूष, धर्मेंद्र जी, हरे कृष्ण। सोनू हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। सोनू रोहित नहीं आ रहे आजकल, क्या हो गया? एग्जाम है। अच्छा एग्जाम तो अच्छा होगा अगर सुबह थोड़ा चैंटिंग कर लिया जाए ना, बढ़िया एग्जाम होगा। ठीक, ओके, विल स्टार्ट। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनाथि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम हरे हरे। Reading from Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 2, the contents of Gita summarized, text number 71. Dhananjay can read. हरे कृष्ण सर। विहाय कामन्य सर्वान् विहाय कामन्य सर्वान् चरोति निःस्पृहः मां चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः
शान्तिम् अधिगच्छति शान्तिम् अधिगच्छति Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Prabhupada ki Jai. Translation: a person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. Purport: to become desireless means not to desire anything for sense gratification. In other words, desire for becoming Krishna conscious is actually desirelessness. To understand one's actual position as the eternal servitor of Krishna, without falsely claiming this material body to be oneself and without falsely claiming proprietorship over anything in the world, is the perfect stage of Krishna consciousness. One who is situated in this perfect stage knows that because Krishna is the proprietor of everything, everything must be used for the satisfaction of Krishna. Arjuna did not want to fight for his own sense satisfaction, but when he became fully Krishna conscious, he fought because Krishna wanted him to fight. For himself, there was no desire to fight, but for Krishna, the same Arjuna fought to his best ability. Real desirelessness is desire for the satisfaction of Krishna, not an artificial attempt to abolish desires. The living entity cannot be desireless or senseless, but he does have to change the quality of the desires. A materially desireless person certainly knows that everything belongs to Krishna. Ishavasham idam sarvam, and therefore he does not falsely claim proprietorship over anything. This transcendental knowledge is based on self realization, namely, knowing perfectly well that every living entity is an eternal part and parcel of Krishna in spiritual identity, and that the eternal position of the living entity is therefore never on the level of Krishna or greater than him. This understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace. Hare Krishna. Sir. Hare Krishna. Thank you very much, Dhananjay. So very beautiful. We'll read tomorrow and we'll finish chapter 2 tomorrow. So कल हम लोग पढ़े थे कि कैसे एक व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत में भावित है, he is not disturbed by any desire. Like there are many rivers, they're coming into the ocean. The ocean also remains steady. Similarly, the Krishna conscious person remains steady on the path of Krishna consciousness. He is never disturbed by so many desires, never disturbed. And he attains the peace. So here Krishna is little bit elaborating in this verse. कृष्ण बोल रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति परफेक्ट पीस को अचीव कर सकता है, हाउ ही कैन अटेन परफेक्ट पीस, अपने जीवन में कैसे शांति को प्राप्त कर सकता है। हम लोग अशांत रहते हैं हमेशा, क्यों? क्योंकि हम लोग वी आर लिविंग इन बॉडीली कंसेप्शन ऑफ लाइफ। हम लोग अपने आप को शरीर मानते हैं और ये शरीर के जितने भी
रिलेटेड चीज है वो हम अपना ही मानते हैं। शारीरिक संबंध, शरीर से रिलेटेड घर, पैसा, धन, दौलत, सब सब कुछ ये शरीर से रिलेटेड है। देन हमारे अंदर एक प्रोप्राइटरशिप का चेतना रहता है, या आई हैव दिस मच, दिस अमाउंट, आई एम द chief of this family or chief of this village, chief of this country, like that. And I have this much of land, I have a house, this. So there is a sense of proprietorship in us. Everybody has this. And because of this proprietorship, we think we are the enjoyer. It is, of course, this should be there because we are part and parcel of Krishna. Because Krishna is the proprietor of everything. He is the proprietor of all cosmic manifestation. सब कुछ उन्हीं से आता है, सब कुछ उन्हीं का ही है। सर्वहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वित। कृष्ण बताएं 10th चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। कृष्ण बोलते हैं कि मेरे से सब कुछ आया है, जो भी मैनिफेस्टेशन है मेरे से आया है। ये जानकर जो व्यक्ति कृष्ण की पूजा करता है, पूजा अर्चना करता है, वही व्यक्ति एक्चुअली he can achieve Buddha Bhava, most perfect stage he can achieve. And that perfect stage is to achieve the position of our constitutional position, to achieve the constitutional position of the servitudeness, to become the servant, to become eligible to serve Krishna. So यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं जो व्यक्ति डिजायर से फ्री है, कौन सा डिजायर? डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, and who has given up all sense of proprietorship and is devoid of false ego, he can attain real peace. So प्रभुपाद यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं डिजायर आएगा, डिजायर को हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते, बट वी कैन dovetail the desire in Krishna consciousness, how I can serve Krishna, how I can become Krishna conscious more and more. That desire should be developed in us. Desire we cannot stop, but here desirelessness means desiring for Krishna, desiring to please Krishna. That is desirelessness. But we cannot sit down and think that I will become desireless. It is not possible. Particularly in this age of Kali, where a lot of disturbance. So the most important thing is हम लोगों को अगर desireless बनना है, then we have to desire more how to please Krishna. तो प्रभुपाद इसलिए बता रहे हैं, first we need to understand our actual position as the eternal servitor of Krishna. That is the most important. ये चीज बार बार हम लोगों को प्रभुपाद बताते हैं, बार बार हर श्लोक में, हर लेक्चर में, हर बुक में। लेकिन कोई सोचेगा ये बार बार प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं ये चीज, बार बार बोलते हैं we are servant of Krishna, we are part and parcel of Krishna, everything belongs to Krishna, Krishna is the supreme personality of Godhead. These things हम लोग डेली डिस्कस करते हैं। क्यों करते हैं?
हमारे आचार्य लोग बताते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दिस एवरी डे एवरी मोमेंट, इवन इफ इट इज रिपीटिंग एवरी मोमेंट। इसको रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि हम लोग इतने समय से बद्ध हो चुके हैं, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स हम लोग इतना बद्ध हो चुके हैं, फॉरगेटफुल। तुरंत इसी यहाँ से जाएंगे, भगवद गीता डिस्कशन या क्लास से जाएंगे बाहर, फिर भूल जाएंगे हम लोग कौन है। देन अगेन विल इन्वॉल्व इन ऑल दीज एक्टिविटीज। इन्वॉल्व होना तो ठीक है, लेकिन विल आवर कॉन्शियसनेस इज कंप्लीटली, it will forget that Krishna is the supreme personality of Godhead. Everything belongs to Krishna and we are part and parcel of Krishna. Therefore we are servant of Krishna. इतना ही चीज हम लोग याद नहीं रख पाते, इसलिए हमारे आचार्य लोग, especially Prabhupada also, repeatedly he reminded us every day, every moment when we read the books of Prabhupada. Every time he reminds us. Because we are forgetful. He knew very well that we all are forgetful, will forget that we are servant of Krishna. And it is very important that Isavasham idam sarvam. Krishna is the proprietor of everything. That one should understand. One should realize. When we gradually speak, gradually discuss these things, then we gradually understand this. Krishna actually giving everything. He is the proprietor of everything. सर्व कारण कारणम, ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। कृष्ण भी यही चीज बोल रहे हैं भगवद गीता में, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव। तो इसलिए सारे जितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं, the Mahatmas, Mahajanas, they all have given the same statement. Krishna is the proprietor of everything. He is the supreme proprietor. He has given us everything to sustain our life. So sustaining our life, why He has given us this life? He has not given this life of a human being or human birth to uselessly waste this. It has to be utilized properly. And not by becoming krupana. Krupana means जिसके पास बड़ा धन है लेकिन वो यूज नहीं करता है अपना बेनिफिट के लिए, तो हम लोग भी वैसे ही है, कृपण है। लेकिन जो ब्राह्मण होते हैं, दे यूज एवरीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द सेल्फ, एवरीथिंग। So therefore Prabhupada is explaining that when one is situated perfectly, he knows that Krishna is the proprietor of everything and everything should be used for the satisfaction of Krishna. Like Arjuna. Arjuna in the battlefield, he is doing devotional service. वो बाण चला रहा है तो devotional service कर रहा है. He is doing bhakti there because he is satisfying Krishna. So anything we do for the satisfaction of Krishna, for the pleasure of Krishna, that is devotional service. Devotional service doesn't mean that खाली मंदिर जाने से हम लोग devotional service नहीं करते हैं, जरूरी नहीं। Devotional service means अगर हम मंदिर में जाकर भी हमारा मन अथय है, स्थिर नहीं है, किसी को गाली देते हैं, वहां पे किसी को एनवी करते हैं, देन उसका कोई फायदा नहीं। that becomes आसुरी प्रवृत्ति। लेकिन when we do anything, even मंदिर हम लोग नहीं जा रहे, कहीं और भी है, and we are doing anything for Krishna's pleasure,
That is devotional service. Now the question is, what Krishna wants, how we'll know? Krishna had told this in Bhagavad Gita. When we read Bhagavad Gita, we can understand what Krishna desires. What is the, in what way if we'll work, in what way we should work so that Krishna becomes very pleased. Or else, if we don't understand Bhagavad Gita, we can approach Sadhu, Shastra and Guru. They will guide us how we can please Krishna, in what way we should act so that Krishna will become very pleased. Like अर्जुन के साथ तो कृष्ण थे, कृष्ण उसको बोले, कृष्ण उनको बोले कि आप युद्ध करो. Then he fought. After hearing Bhagavad Gita, he started fighting for the pleasure of Krishna. And that is the devotional service. But we cannot whimsically kill anybody and tell this is devotional service. It is not. So therefore, Prabhupada is telling the real desirelessness is the desire for the satisfaction of Krishna, not an artificial attempt to abolish desires. Artificial we cannot, not possible. The living entity cannot be desireless or senseless, but he does have to change the quality of desires. हम लोगों को desire को change करना है. That is possible only when we are on the path of Krishna consciousness, when we are chanting regularly rounds, when we are reading Prabhupada's books, we are associating with devotees, and we are taking proper diet. We are not taking the diet in the mode of passion and ignorance. We are taking the diet in the mode of goodness, and when it is offered to Krishna, it becomes Shuddha Sattva, superior than everything, transcendental food stuff. So we should try to always try to hanker for these things: association, chanting, book reading, and prasad. These four things will automatically elevate our consciousness. तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि this transcendental knowledge is based on self-realization, namely knowing perfectly well that every living entity is an eternal part and parcel of Krishna in spiritual identity, and that the eternal position of the living entity is therefore never on the level of Krishna or greater than him. This understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace. Prabhupada many times mentions in his lectures, before understanding Bhagavad Gita, one must accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. Unless we accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead, nobody can be equal to or greater than Krishna. That understanding should be within us before starting Bhagavad Gita. That is very, very essential and important. That Krishna is the Supreme Personality of Godhead. I am the servitor of Krishna. I am a servant of Krishna, servant of servant of servant of servant of Krishna. I need to serve everyone, all the living entities, the whole creation. That should be my consciousness. And when we have this attitude of service, everybody has this attitude of service. But the only thing is, we need to dovetail this attitude of service to please Krishna. सबके अंदर ये सेवा भाव है. This is our characteristic, natural intrinsic characteristic. लेकिन ये सेवा भाव को हम लोगों को ऐसे यूज करना है so that Krishna will become very pleased. That is very important. सेवा भाव तो सबके अंदर है,
एवरीबडी इज सर्विंग। कोई अपने इंद्रियों का सेवा कर रहा है कोई कोई समाज का सेवा कर रहा है, कोई अपने पिता माता का सेवा कर रहा है। लेकिन वी शुड नो हाउ टू सर्व so that Krishna will become pleased. That is the most important. So where this understanding of Krishna consciousness is the basic principle of real peace. So this is very, very important to understand and to realize. When this understanding will again and again, it will strike our consciousness, gradually will become self-realized, and gradually will able to immediately will be ready whenever there is a chance of serving Krishna. भक्ति अनुकूल मात्रे कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। भक्ति का प्रतिकूल भाव आने मात्र ही उसको निकाल के बाहर फेंक देना। भक्ति का अनुकूल भाव आते ही, जैसे ही भक्ति का अनुकूल कोई भी चीज आए, we should accept it. We should not reject, because our mind will always, it is because it is conditioned mind, or everything is conditioned. Our mind will protect us for accepting devotional service. It will always protect us, because माया मोहित चेतस, हमारा मन जो है माया में मोहित है, तो it will obviously, it will obstruct us, create problem. But we need to forcefully engage ourselves, jump into whatever the cost may be. Even ये भी हो सकता है हमारा जान भी जाना चला जाए, लेकिन हम लोगों को कूदना पड़े to get Krishna service, to please Krishna. That is very important. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Param Prabhu, please continue. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Dandavat. प्रभु जी, आज चर्चा हुआ आज के श्लोक में, जो कि अब पूरा जो गीता का सार प्रभु बता चुके हैं। अब ये जो है दूसरा अंतिम श्लोक है कि इसमें बता रहे हैं प्रभु जी कि शांति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कोई व्यक्ति का मन कैसे शांत हो सकता है, इसके बारे में बता रहे हैं। और यहाँ पर जो 3 वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एक है कि निष्प्रिय। निष्प्रिय होने का मतलब है कि इच्छा रहित हो जाना। कोई व्यक्ति जब इच्छा रहित हो जाता है तो वो जो है शांति प्राप्त करता है, शांति अनुभव करता है। और दूसरा है निर्मम। निर्मम मतलब कोई ममता नहीं, ममता को भी त्यागना पड़ेगा, तो निर्मम है। और तीसरा एक और शब्द है निरहंकार, जो अहंकार नहीं करता है। तो निष्प्रिय, निर्मम, निरहंकार, तो उसी को बहुत अच्छे से बताया गया है कि विहाय कामनाएं सर्वानु पुमांस चरिति निष्प्रिय है। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति के समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित है, और जिसने अपनी सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही व्यक्ति जो है शांति को प्राप्त कर सकता है। बहुत क्लियर शब्दों में लिखा गया है इसमें। और जो है फिर कोई व्यक्ति सोचेगा कि ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है कि उसका कोई इच्छा ही ना हो, एकदम शून्य हो जाए, क्योंकि जब तक हमारा जो है कि शरीर है और इसमें जो इंद्रियां हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं हमेशा रहती ही है, और मनुष्य जो है कि वो इच्छा के सागर में फंस जाता है। तो इसमें बताया गया है कि जो भी अपना जो इच्छा है, इस इच्छा को कृष्ण भावना से जोड़ना है। और
कृष्ण भावना भावित होना ही जो है इच्छा का शून्यता है। इच्छा को जीरो करना, वो एक तरह से अपने सारी इच्छाओं को कृष्ण भावना में लगाना है। तो इसी को इच्छा शून्यता यहाँ पे बताया गया है। और जैसे कहेगा कि कोई कहेगा कि ऐसा हो सकता है जो साधु भी प्रवचन देता है, क्या वो जो है उसका इच्छा खत्म हो गया है? तो ऐसा होता नहीं है। उसका इच्छा क्या है कि वो भगवान के लिए काम कर रहा है, तो वो सारी इच्छाओं के लिए, इच्छाओं को जो है भगवान से कनेक्ट कर दिया है। इसी कारण जो है सभी इच्छाओं को भगवान में लगा दिया है, भगवान के कार्यों में लगा दिया है। तो इसी अपने इच्छा को भगवान के कार्यों में लगाना भी इच्छा रहित बताया गया है यहाँ पे, जो है कि इच्छा शून्यता, ये चीज बताया गया है। और ये इस अवस्था में जो आदमी पहुंच जाता है, कृष्ण भावना अमृत की इसी अवस्था को सिद्ध अवस्था बताया गया है। और सिद्ध अवस्था में जो व्यक्ति रहता है वो जो है किसी भी वो जानता है, वो व्यक्ति जानता है कि हर चीज का जो स्वामी है, पूरे जगत का जो स्वामी है, हर वस्तु का जो स्वामी है वो भगवान खुद है, भगवान कृष्ण है। और यहाँ तक कि हमारे भी जो स्वामी हैं, हम सभी के स्वामी जो हैं भगवान कृष्ण है। हम लोग सभी उनके दास हैं। सारा जगत जो है उसमें जो है कि जब विश्व रूप दिखाया भगवान ने, सारा जगत जो है उन्हीं से निकल रहा है, उन्हीं में समा रहा है। तो ये सब जो है जो कृष्ण भावना भावित में रहता है वो व्यक्ति इस माया जाल में नहीं फंसता है कि यह मेरा है। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसी में फंसे रहते हैं कि ये चीज मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरा है। तो ये सब जो है किसी का है दिया, जो है कि ये सब जो है भगवान का दिया हुआ है। और ये सब के जो एक्चुअल स्वामी हैं वो भगवान ही हैं। तो इस तरह से जो वो आत्म तुष्टि में जो व्यक्ति रहता है वो जानता है कि इन सब का जो एक्चुअल प्रॉपर स्वामी है वो भगवान ही है। और जो है इसमें बताया गया है कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन जब युद्ध नहीं करना चाहता था तो उसको जो है गीता का जो सार है भगवान ने बताया, और उसके बाद जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो युद्ध करने के लिए तैयार इसलिए नहीं होता है कि उसको अपने लिए कुछ चाहिए, वो इसलिए होता है कि उसको जो है कि भगवान का जो आज्ञा है वो भगवान को उस युद्ध का जो भी फल है वो सोच करके जब तैयार हो जाता है, जो होगा वो भगवान के कृपा से भगवान को समर्पित होगा, चाहे वो अपनी इंद्रिय तृप्ति या अपने लिए युद्ध नहीं करता है। तो वही इसमें लिखा भी हुआ है कि अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा ना थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा, मतलब पूरा प्रयास करके वो लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए ही इच्छा है। तो भगवान जो चाहते हैं उसके लिए काम करना ही इच्छा की शून्यता है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता है, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। तो ये लाइन बहुत अच्छा यहाँ पे लिखा गया है, इच्छा कभी शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन इच्छाओं की गुणवत्ता को जो है बदलना होगा। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है कृष्ण भावना भावित हो गए तो अब ऐसा नहीं सोचना है कि अब तो जो है कि कुछ हम खाना पीना पे भी ध्यान नहीं दे, खाना भी नहीं खा पाएंगे जो है, और सो भी नहीं पाएंगे, सुबह 4 बजे 5 बजे उठा दिया जाएगा। ये सब नहीं है, बस क्वालिटी हमें अपना इम्प्रूव करना है। कि जो स्थित प्रज्ञ होता है, पीछे भी हमने पढ़ा है, वो व्यक्ति समझता है कि कितना सोना चाहिए, कितना जगना चाहिए, सब चीज पूरा कंट्रोल में
होना चाहिए, नहीं कि सोए तो सोए हुए पड़े हैं एकदम। बहुत जगह हम हॉस्टल में देखे हैं विद्यार्थी जो है कि सोया है एकदम, जब सोना है तब जग रहा है, जब जगना है सब सो रहा है। और जो है ऐसा भी नहीं कि बहुत इफेक्टिव काम कर लेता है, सुबह 3-4 बजे तक जो है एकदम इधर से उधर कर रहा है, गप दे रहा है, और उसके बाद 4 बजे सोया, 11 बजे सो के उठ रहा है, पता चला एक क्लास भी छूट गया। कोई बात नहीं, एक क्लास छूट गया है, कोई बात नहीं, गया तैयार मतलब ओके, 3 बजे नहा रहा है उसके 3 बजे सुबह, 4 बजे वो नहाना चाहिए तो 3 बजे दोपहर में नहा रहा है। तो इस तरह से जो है कि तब वो फिर बाद में जब एग्जाम आ जाता है तो बहुत टेंशन में आ जाता है। तो टेंशन में आने के बाद जो कहता है कि अरे कुछ पढ़ा ही नहीं है, अब जो क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह से, मगर कहने का क्या तात्पर्य है, अगर हम शेड्यूल बना के कोई भी काम शेड्यूल के हिसाब से, मतलब जो है कि शुरू से ही करेंगे, अगर 2 पेज भी रोज पढ़ेंगे तो महीना के अंत में पता चलेगा कि 60 पेज पढ़ लिए हैं। अब जैसे हम लोगों ने एक-एक श्लोक पढ़ा, एक श्लोक ही एक दिन पढ़ा, और एक-एक श्लोक पढ़ते हुए आज हम लोग 2 अध्याय खत्म करने वाले हैं। तो कोई भी चीज जो है कि अचानक एक बार में नहीं हो जाता है। अगर एक-एक करके ही पहले लोग जो है घरों में वो पैसा रखने वाला चुकिया आता था एक, ठीक ना? उसमें जो है मिट्टी का चुकिया आता था, उसमें हम लोग के घर में ऐसा बोलता है, तो उसमें 2 रुपया 4 रुपया जो सिक्का होता है वो जमा करते रहता है आदमी, घर में लोग, बच्चे, और अंत में जो है वो भर जाता है। तो कहने का क्या तात्पर्य है, इसी प्रकार जब हम धीरे-धीरे प्रभु के चरणों में अपनी भक्ति को समर्पित करेंगे, तो हमारा जो है मन एक दिन जरूर कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। और वास्तव में होता ही है कि अभी तो हम लोग बहुत अच्छा से कर लिए, उसके बाद जब फिर जो है जैसे यहाँ से निकलेंगे सांसारिक चीजों में मन उलझ जाता है। लेकिन इसी के लिए प्रभुपाद जी बार-बार समझा रहे हैं यहाँ पे कि मन है तो मन वो भटकेगा ही भटकेगा, लेकिन जो है कि हम लोग को प्रयास नहीं छोड़ना है, प्रयास हमेशा करते रहना है। सफल वही होता है जो प्रयास करता है। अगर कोई प्रयास ही नहीं करे तो कैसे सफल हो जाएगा? जो विद्यार्थी फॉर्म ही नहीं भरा वो तो कभी पास नहीं हो सकता है, एग्जाम में नहीं बैठा तो कभी पास नहीं हो सकता है। और जो पास एग्जाम में मतलब बैठा है, फॉर्म भरा है, एक बार फेल हो जाएगा तो कम से कम उसको पता चलेगा कि कहाँ फेल हुए हैं, क्या हमारा कितने मार्क्स से हम कम हुए हैं, तो उतना जो है कि अगले बार फिर पढ़ाई करेगा, वहां तक पहुंच जाएगा। तो इसी प्रकार जो है कि कोई भी काम जो है जिसमें हम फेल भी हो जाते हैं, तो कहते भी हैं कि फेल्योर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। तो यहाँ भी हम बार बार फेल होंगे, हमारा मन जो है बार बार जो है इंद्रियां इतनी माया प्रभु की जो है इतनी ये है मतलब बहुत तीव्र है कि मन जो है बहुत तेज गति से भटकता है। लेकिन जब हम धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे जो है मन को जो है कि ऐसा कृपा करिए कि हमारा मन जो है आपके चरणों में लगा रहे। तो इस तरह से जब हम प्रयासरत रहेंगे तो एक दिन इतना आशा है कि सफलता कुछ न कुछ हद तक जरूर मिलेगी। तो ये सब चीजें जो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि आत्म साक्षात्कार हो जाता है आदमी को, और यह ज्ञान हो जाता है कि वह आदमी जो है प्रत्येक जीव कृष्ण का ही अंश स्वरूप है। और तब जो है जीव समझ जाता है कि कृष्ण भावना अमृत का ही ज्ञान जो है वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। तो कृष्ण भावना भावित अपनी इच्छाओं को कृष्ण सेवा में लगाना, भगवत सेवा में लगाना ही जो है मूल शांति का सिद्धांत है। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, इतना नया सीखा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू आत्माराम प्रभु जी, बहुत सुंदर, बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।